Beta, if you student missed this part today, so we will redo it and also cover some part of the next lecture. And so this these 4 chapters are the part of the climatology. Now we are starting climatology, and what we study in climatology: the structure of atmosphere, composition of atmosphere, heat budget, wind pressure system. Apart from this, water in atmosphere. These all things we cover in climatology. Let's start with it. So, composition and structure of the atmosphere, chapter 8. What is composition? What do you mean by composition of atmosphere? This means this diagram. What is the percentage of nitrogen in atmosphere? It is 78%. Oxygen 21%. Then argon 0.93. CO2 0.036. Only learn for competitive exams. Rest are not necessary. Just have a glance, so you can have an idea about what is the overall structure. There are other gases also there. You must have read in 10th to 9th class element table what are the gases in atmosphere. So what is structure of atmosphere? Here, structure of atmosphere means the composition of our atmosphere, layers, how they are arranged. This is controlled by temperature. See, heavier gases will be held to the gravity near to the earth surface. Lighter will go to the outer side, like थोड़ा सा बाहर एटमॉस्फेयर जो सरफेस से ऊपर चले जाएंगे. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में आप बैलून में आप हाइड्रोजन भरते हैं ना, तो वो उड़ करके ऊपर चला जाता है. यही रीज़न है कि वो लाइटर गैस है. हैवियर गैस जो होंगी वो एटमॉस्फेयर के जो सरफेस के बिल्कुल पास में होगी. ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर एटमॉस्फेयर. दिस इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर. नाउ सी द हाइट ऑफ like this is the temperature. This line shows the temperature. Like see on here it is about 18 degree Celsius. Now it dropped down. Then again on stratosphere it is constant. Then it increases. Now here about 30 kilometer to 50 kilometer there is one more very potent gas, life-giving gas. What the name of it? Ozone gas, ozone layer. It is called stratosphere, strata. There are number of gases in strata. Now these are arranged. Their temperature is also like increasing, like strata like type. We will cover this later. So let's start with the chapter. What is atmosphere? Atmosphere is the mixture of the different gases. It is these gases are held to the earth surface due to earth gravity. This is atmosphere. It is the envelope of different gases. Those are held to earth surface because of its gravity. So now we are it contains, देखो एटमॉस्फेयर, जैसे हम कोई भी आंसर स्टार्ट करते हैं, एक बड़ा आंसर लाइक 16 मार्क्स के राइट कर रहे हैं, तो वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. सिमिलरली विद दिस पार्ट इट इज स्टार्टिंग विद एन इंट्रोडक्शन. ही ओनली वांट टू से दैट atmosphere, the gases are very important for us, for any living being. Now he says that like we eat food, we drink water. अगर हम कुछ दिनों के लिए ब्रीथ नहीं देखो खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, we can survive. But if we don't breathe for a few minutes, we won't survive. Like unconscious हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे. इतना इंपॉर्टेंस है गैसेस का. अगर इसमें आगे रीड करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म थोड़े टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, दैट ऑल इज रिटन हियर. सो ये कहना चाहता है कि बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है जो गैस हमारे, सो देयरफॉर वी नीड टू स्टडी इट, वी शैल स्टडी द एटमॉस्फेयर because of its importance. So atmosphere is the mixture of different gases and it envelops the earth all around. It contains life-giving gases like oxygen for human and animals and carbon dioxide for plant. We know it. Carbon dioxide they use for food making, sunlight from the sun,
and mineral from the earth and CO2 from the atmosphere, and then they release oxygen. That is very useful for us, you know. Okay, leave it. So the air is an integral part of the earth mass. तो अर्थ का जो टोटल मास होगा, मान लो जो भी मास है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, तो मान लो जो भी एक्स है, तो उसमें से कुछ पार्ट जो एटमॉस्फेयर का भी होगा ना। देखो जो अर्थ का टोटल मास है, क्या मास है अर्थ का हमें नहीं पता अभी कितना मास है, ज़रूरी भी नहीं। इसके ऊपर जो गैसेज है ना, ये भी तो कुछ वेट एक्सर्स डालती हैं। जो गैसेज हैं वो भी तो अर्थ के क्या अर्थ से रिलीज़ हुई हैं, ये भी तो अर्थ का ही पार्ट है गैसेज। सो कुछ पार्ट जो अर्थ के मास का है वो कंस्टिट्यूट करती है हमारी गैसेज। नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट ऑफ द जो मास है वो 32 किलोमीटर जो अर्थ हाइट है एटमॉस्फेयर वहाँ तक है, उससे ऊपर ये रेरिफाइड हो जाता है। सो these all the gases are like colorless, odorless, most of them, okay, and they can be only felt when they blow, okay, as a wind। देखो मैंने आपको क्लास में भी ये बात बोली थी, एयर इज स्टैटिक, ठीक है। जब ये हॉरिजॉन्टली ब्लो करती है देन इट इज़ कॉल्ड विंड। इट इज़ एयर, व्हेन एयर ब्लो हॉरिजॉन्टली इट इज़ कॉल्ड विंड, रिमेंबर इट। एयर क्या होगी, एक बार मैंने बताया था कि इट विल राइज हॉरिजॉन्टली एंड इट विल मतलब सबसाइड भी करेगी नीचे, ठीक है, वो एयर होगी। और जब ये हॉरिजॉन्टली चलेगी ये वाली, तब ये बोलेंगे विंड है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द कंसेप्ट, वी विल फर्दर ओके, रिमेंबर इट। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इट विल राइज and in upper atmosphere temperature is very low, in troposphere when we go at height it is very low, and the reason why it is low because हमारी जो ओके वो पार्ट है हीट बचत का। एनीवे देखो जो हमारी जो गैसेज है ना, ये भी क्या करती हैं, हीट को अब्जॉर्ब करती हैं। वो कौन सी हीट अब्जॉर्ब करेगी, जो अर्थ से निकल के जाएंगी। देखो जैसे सनलाइट आई, ठीक है, अर्थ पे सनलाइट पड़ती है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इट इज़ ओपेक फॉर द रेज कमिंग फ्रॉम द सन बिकॉज इट हैज़ शॉर्ट वेवलेंथ, दैट इज़ वाई इट कैन नॉट अब्जॉर्ब दिस एनर्जी। इट इज़ व्हेन इट स्ट्राइक टू द अर्थ सरफेस and after some time earth surface get heated up and then it start releasing its radiation in long wave form, right? Then these gases start they can absorb this long radiation। नो ऐसी बात है बच्चों। देखो जैसे हम कोई गन शॉट लाइक गोली चलाते हैं ना, तो शीशे के अंदर से वो बिल्कुल ऐसे निकल जाती है। अगर कोई ईंट मारता है शीशे के तो वो तड़क जाता है। तो यही बात है, जो शॉर्ट वेव है ना, ये गन की गोली की तरह चलती है, तो एटमॉस्फेयर को पता भी नहीं लगता, ये फटाक से निकल जाती हैं, ठीक है। ऐसे कुछ बात है, वो जो फिजिक्स का पार्ट है तो बिल्कुल एकदम आर पार निकल जाएंगी। पर जो इससे रिलीज होगी ना जो एनर्जी, ठीक है, वो लॉन्ग वेव में होगी, और इससे वो जो आसपास की सराउंडिंग की गैसेज हैं, इसके आसपास जो हेल्ड है गैसेज, वो क्या हो जाएंगी, हीट हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे हीट होंगी तो वो क्या करेगी, अर्थ यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो कोई बॉडी जो वाटर वेपर हीट हो जाता है तो वो क्या करता है, टेंड टू राइज अप। आपने कुकर में देखा होगा जब पानी उबालते हो, तो इट विल राइज अप। और मैंने ऊपर बताया है कि टेम्परेचर कम होता है। वो क्यों कम होता है, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे 32 किलोमीटर यहाँ पे गैसेज बहुत कम हो जाती हैं, तो मतलब गैसेज कम हो गई तो अब्जॉर्प्शन भी गैस का वो जो हीट का कम होगा ऊपर, मतलब जो इस बॉडी में या सरफेस ने जो हीट छोड़ी ऊपर की तरफ, यहाँ पे तो गैसेज बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे जो पर्सन था इसको तो आसपास बहुत ज़्यादा गैसेज है इसको तो हीट महसूस होगी, लेकिन जो ऊपर जाते हैं ना तो यहाँ पे गैसेज भी कम है, तो इसलिए यहाँ पे हीट भी कम होगी। मतलब जैसे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कि यहाँ पे मान लो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर होगा डाउन, यहाँ पे आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। ऐसे समझ के चलो इसको अभी,
बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्या है, क्या रहता है, वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। यही रीज़न है कि ऊपर गैसेज भी कम है, और जो इसने इस सरफेस जस्ट सनलाइट इसने एब्जॉर्ब करी, ये क्या था, एक तिकोना है, लाइक कोन की शेप का है। तो इसके ऊपर जो लाइट पड़ी ना वो बहुत कम पड़ी इसके सरफेस पे, और यहाँ पे जो लाइट पड़ी थी सरफेस इस एरिया पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट सरफेस, तो यहाँ से रेडिएशन ज़्यादा क्या होंगी, निकलेंगी। ठीक है, रेडिएशन भी ज़्यादा निकलेंगी, तो और इसीलिए भी ये वाला एरिया हीट होगा, और दूसरा यहाँ पे गैसेज भी ज़्यादा हैं, तो ये वाला एरिया ज़्यादा हीट अप होगा इन कंपैरिजन टू द जो माउंटेन वाला एरिया है, वहाँ पे कम हीट होती है। आप शिमला जाते हो, मसूरी जाते हो, तो वहाँ पे हीट कम महसूस होती है। रीज़न क्या है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो जो प्लेस है वो हाइट पे है। ठीक है, वो कम सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, ऐसे बहुत कम सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। और ये वाले जो प्लेस होते हैं ना, ये सन की ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गैस, ठीक है, गैस भी ज़्यादा है, और ये हीट भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो रिलीज भी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, जो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वो उतना रिलीज भी करता है ना, आपने साइंस में पढ़ा ये पार्ट। ठीक है, तो इसी कारण जो अर्थ सरफेस पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होने लगता है। यही कारण है कि माउंटेन्स के ऊपर आपको बर्फ़ ज़मीन मिलती है, आइस कैप के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर जो आइस कैप होती है। ओके, सो अब हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट, ये पार्ट आता है कि बच्चों ओजोन लेयर के बारे में, जो मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया। अगर आप टेम्परेचर का यहाँ पे ग्राफ में देखोगे इस वाले में, तो टेम्परेचर कम होता नज़र आ रहा है आपको। सी हियर इज टेम्परेचर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ falling down. Now see the temperature, it is coming down again, it is stagnant, then in stratosphere it start rising. Why? Because ओजोन लेयर क्या करती है, सन रेज को एब्जॉर्ब करती है, यूवी रेज को फिल्टर करके नेक्स्ट हमारी अर्थ सरफेस से भेजती है। दैट इज़ वाई द हियर टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग अगेन, इट इज़ कॉन्स्टेंट। the reason why it is again start falling down, because I told you on upper atmosphere the concentration of gases is very rarefied, बहुत कम गैसेज है यहाँ पे। और वो कौन सी गैसेज हैं, जो बहुत ही लाइट वेट हैं। नो, हैवी गैसेज आर हेल्ड टू अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। सो ये इसको बहुत ज़्यादा फिल्टर करके, इसीलिए इसका लाइफ गिविंग लेयर भी नाम है ओजोन का। दैट इज़ वाई द जो लाइफ पॉसिबल हुई है अर्थ सरफेस पे, इसी के कारण हुई है। अनदर एक रोल आता है मैग्नेटोस्फेयर का। आई विल डिस्कस दैट पार्ट विद यू आफ्टर डिस्कसिंग द कन्वेक्टिव करंट, यू नो, देन you will be able to get this concept. Here is in next chapter must be there will be convective current. तो उसका रोल आता है मैग्नेटोस्फेयर के अंदर, वो भी हैं, और ओजोन की तरह उसका भी काफ़ी बड़ा रोल है। दैट इज़ वाई लाइफ पॉसिबल हुई है हमारे अर्थ प्लैनेट पे, और प्लैनेट पे नहीं हुई है, बिकॉज उनका जो मैग्नेटोस्फेयर है वो काफ़ी वीक है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कि वो सन की जो लाइट आती है उनको बिल्कुल ही डिफ्लेक्ट कर देता है, या बहुत ज़्यादा वीक है कि वो सन की जो सोलर फ्लेयर्स आती हैं, नो, सन से बहुत तरह की लाइट आती हैं बच्चों। सी गामा रेज आती हैं, एक्स रेज आती हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट आती हैं, इंफ्रारेड आती हैं, माइक्रोवेव आती हैं। ठीक है, एफएम वेव आती हैं। एफएम वेव क्या है, जो आप एफएम सुनते हो, यू नो, वो उसको हम उसको यूज़ करते हैं, हम उसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे थर्मोस्फेयर के अंदर से। सो ये सारा पार्ट है। देखो, एक्सरेज का कहाँ यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स वगैरह में, आपकी जो हड्डी टूटी एक्सरे होता है, एयरपोर्ट के अंदर लगेज स्कैनिंग होती है, दिस नो दीज आर वेरी हार्मफुल रेज, आपकी बॉडी को पेनिट्रेट करके गोली की तरह निकल के चली जाएगी। ठीक है, ऐसे आएगी और इसके अंदर से पार हो जाती है बिल्कुल बॉडी, जो आपके बॉडी का पार्ट है, स्किन है, मान लो स्किन के आपकी सेल्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज होती हैं। ओजोन लेयर फिल्टर दिस ऑल पार्ट, यू नो, एंड लेट जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं उसी को हमारे अर्थ सरफेस पे आने देती है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगेन, सो शैल आई स्टॉप इट, ओके। एंड नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इन द नेक्स्ट पार्ट राइट नाउ ओनली।